Hi guys, welcome to Unacademy Law. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. Guys, आज का हमारा जो ये video है, it is about how to start reading faster. So I'm going to give you some tips and tricks जो कि मेरे लिए काम करते हैं, which will hopefully sort of help you to enhance your reading speed. So before moving into the video, guys, a little bit about me. मैंने अपना LLM किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से इन द ईयर 2020. मैंने अपना BLLB किया है UPS देहरादून से इन द ईयर 2019. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience है of about 4 years and I'm also a writer, editor and blogger. So, हमारा जो topic of discussion है, like I said, it's how to improve your reading speed. Now, why is this video important? Why is this relevant for you guys? Why? Because you are CLAT aspirants, right? You are CLAT aspirants and we know कि lately, last year से जो हमारा CLAT का paper है, that's mostly passage based. Right, that's mostly passage based and उसकी वजह से बात ये है कि there are like 150 questions that you need to solve in 120 minutes. ठीक है, so आपको 2 घंटे में 150 questions solve करने होते हैं. So you don't even get like 1 minute per question, right? So question solve करने के लिए you don't have 1 minute per question. उसके ऊपर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं. सो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर जो है इट्स फिल्ड अप ऑफ पैसेजेस व्हिच आर ऑलमोस्ट लाइक 350 to 400 words. So in order to attempt our paper efficiently and comparatively easily so that we don't get stuck, ये passage based questions देख करके हम पढ़ते पढ़ते में stuck ना हो जाएं, so that हमारे questions miss out हो जाएं, because we have very limited time to solve the paper. It is important that we improve our reading speed. All right, so that's why this video is relevant, that's why this video is important. And so yeah, without further ado, let's get into the tips and tricks that I want to give you. So before moving into that, the first thing that I want you guys to do is, first of all, सबसे पहले तो time yourself. ठीक है, सबसे पहले time yourself. Time yourself का क्या मतलब है? Just count what your WPM is. What's WPM? WPM is words per minute. ठीक है, so सबसे पहले you need to know कि हम अभी एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ पे करते हैं. ठीक है, सो हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी रीड पर मिनट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी रीड पर मिनट. ठीक है, सो यहाँ ये करने से क्या होगा कि हमें एक बेस समझ में आ जाएगा, राइट, एंड देन वी कैन बिल्ड अप फ्रॉम देयर. सो आई थिंक anything between 100 words, around 100 words if you can read in a minute, that is quite good. So just time yourself and see कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ पाते हो. ये करने के लिए आप नॉर्मल टाइमर यूज कर सकते हो या फिर बहुत सारे एप्स भी होते हैं एंड्रॉइड फोन पे, एप्पल फोन्स पे. सो यू कैन यूज दोज एप्स एंड देन यू कैन टाइम योरसेल्फ. सो दैट विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब इसके बाद जो मुझको आपको टिप्स देनी है on how to improve your reading speed. The first thing to do is we know कि जो हम पढ़ते हैं CLAT के preparation के लिए we have to read newspapers. We have to read newspapers on a daily basis, right? हमें newspapers पढ़ने होते हैं, हमें legal reasoning के लिए हमें theory पढ़नी होती है, हमें English के लिए theory पढ़नी होती है. So we have a lot of things to read which are नॉट सो एक्साइटिंग. ठीक है, जो कि थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं कभी कभी. सो कई बार आपका रीडिंग स्पीड ड्रॉप इसलिए भी हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेक्स्ट दैट यू आर रीडिंग. सो इन ऑर्डर टू overcome this problem, what you need to do is you need to actually excite yourself to read whatever you are reading. ठीक है, I know ये बहुत cliched सी और hypocritical सी बात लग रही होगी सुनने में, but the thing is guys कि you control your mind does not control you, right? So जो भी आप पढ़ रहे हो, you need to excite yourself. अपने दिमाग को ट्रिक करके. ठीक है, कि भाई जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे पढ़ना है क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे पढ़ना है और अभी जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा.
ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे रैंचो ने थ्री इडियट्स में कहा था, इफ यू रिमेंबर देयर इज अ सीन जिसमें रैंचो का एक डायलॉग होता है जहाँ पे ही सेज समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि आज बड़ा मजा आएगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट? So similarly on those lines, you need to trick your mind and excite yourself, even if you're reading a news in the newspaper, even if you're reading कोई छोटा सा टॉपिक ऑफ योर लीगल रीजनिंग सेक्शन और एनीथिंग, यू एक्चुअली नीड टू ट्रिक योर माइंड एंड से कि कुछ तो सीखने को मिल रहा है, और जो भी सीखने को मिल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. सो यू नीड टू एक्साइट योर सेल्फ एंड यू नीड ट्रिक योर माइंड इनटू सॉर्ट ऑफ बिलीविंग कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इट्स गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन रीडिंग इट. सो this is one cliched tip that I wanted to start with. अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे आते हैं. ठीक है. सो द सेकेंड टिप दैट आई कैन गिव यू गाइज इज फिंगर पॉइंट करके रीड करना. ठीक है. अगेन ये बचपन में हम किया करते थे, है ना? बचपन में हम किया करते थे, जब हम पढ़ना सीख रहे थे तो हम ऐसे ऐसे हम फिंगर पॉइंट करके पढ़ते थे, राइट? सो गाइज एक्चुअली अगर आप फिंगर पॉइंट करके पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन, आपके फिंगर, आपके आई का जो कोऑर्डिनेशन है साथ में, ठीक है, सो दैट वर्क्स very well and it actually helps in improving your concentration. कई बार आप क्या है कि अगर आप you're just glancing through things, you're just reading it like that without using your finger, if you're just reading it like that, तो क्या कई बार क्या होता है कि आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते. ठीक है. कई बार कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, आप वापस से पीछे से आप फिर से पढ़ना शुरू करते हैं in order to understand कि आपने क्या पढ़ा था. ठीक है. Now this problem will go away if you start using this technique again, जो फिंगर पॉइंट करके पढ़ने वाली टेक्निक है. ठीक है. फिंगर पॉइंट करके पढ़ने वाली टेक्निक है. if you start doing this, तो क्या होगा इससे? लाइक आई सेड, जो कोऑर्डिनेशन बढ़ती है उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा. ठीक है. अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो आप पढ़ रहे हो उसको आप रिटेन कर सकोगे बेटर. एंड ऑल्सो एक चीज ये है कि अच्छा, देर इज दिस एक्टिविटी दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू. ठीक है. एक एक्टिविटी है जो आप करना. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज यू जस्ट सिट एंड यू बिना किसी चीज के टू गाइड यू, जस्ट एक बार इस एंड से इस एंड तक अपने आई बॉल्स को मूव करने की कोशिश करो. ठीक है. लाइक ऐसे, मतलब ऐसे करके, बिना किसी चीज, बिना किसी चीज को देखे हुए, बिना किसी चीज के गाइडेंस के, जस्ट ट्राई टू मूव योर आई बॉल्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ठीक है. व्हाट यू विल सी इज कि ये जो मूवमेंट है आपके आई बॉल्स का, ये बहुत डिस्टॉर्टेड होगा. ठीक है. ये बहुत डिस्टॉर्टेड होगा. डिस्टॉर्टेड होगा का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा. ठीक है. सो बहुत डिस्टॉर्टेड आपके आई बॉल्स का मूवमेंट होगा. बट अगेन सेकेंड बार सेम चीज करो, बट जस्ट प्लेस अ फिंगर from on this end and then follow this finger from this end to the next end. ठीक है. इस एंड तक, फिर यहां से वापस इस एंड तक फॉलो करो. यू विल सी कि आपके जो आई बॉल्स का मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ है. ठीक है. वो बहुत स्मूथ है. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल टू शो यू कि कैसे फिंगर पॉइंट करके पढ़ने से, अगर आप बिना फिंगर पॉइंट किए पढ़ रहे हो, इफ यू जस्ट रीडिंग लाइक दिस, तो कई बार चूंकि बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से आप पढ़ रहे होते हो, तो इसलिए भी आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ पाता, एंड यू मिस आउट ऑन वर्ड्स बिकॉज लाइक आई सेड, वो आपके आई बॉल्स ऐसे डिस्टॉर्टेड तरीके से जा रहे होते हैं. बट इफ यू रीड using your finger as a guide, if you read like this, तो वो काफी स्मूथली, यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. ठीक है. यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग एंड this will definitely help in improving your concentration, improving your reading speed. ठीक है. सिर्फ स्पीड बढ़ाना जरूरी नहीं है, बात है कि हमें समझ में भी आना चाहिए. ठीक है. so we also have to comprehend what we are reading. so this particular technique is going to help you with this, because ये आपका concentration बढ़ाएगा, आपका स्पीड बढ़ाएगा और आपको better comprehend करने में help करेगा. ठीक है. so use this and it should help. It should help. all right. ठीक है. So also एक टिप है which you might or might not follow actually. just एक बार खुद के लिए ट्राई करके देख लेना. कई बार क्या होता है, suppose if you have a page that you want to read. ठीक है. ये पेज है जिसमें ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें लिखी हैं जो हमें पढ़नी है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हम
यहां से ऑब्वियसली हम इस एंड से पढ़ना शुरू करते हैं एंड देन वी गो इस तरफ, ठीक है। सो इफ अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम एक एंड पे एक कोई वर्ड है, सपोज द करके कोई वर्ड है, तो जब हम द पे देख रहे होते हैं तो उसके आसपास में जो वर्ड्स होते हैं ना, वो भी हमें ब्लर्ड तरीके से पर दिख रहे होते हैं, ठीक है। वी कैन सी दोज वर्ड्स आर देयर। सो कई बार, and this is just a trick which you can use and try for yourself if this works for you or if this doesn't work for you. If this doesn't work for you तो फिर नॉर्मली जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना, बट इफ इट डज वर्क फॉर यू तो क्या करना कि हमेशा अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पेज के सेंटर पे रखो, ठीक है। वो पेज के सेंटर पे रखो एंड देन स्टार्ट रीडिंग। तो क्या होगा कि आपको सेंटर पे अगर आपका ध्यान रहेगा पेज के, तो आपको 2-3 वर्ड्स इधर से भी दिख रहे होंगे, 2-3 वर्ड्स इधर के भी दिख रहे होंगे, ठीक है। सो आप कम टाइम में, लेस टाइम में आप ज्यादा, यू कैन रीड मोर, ठीक है। यू कैन रीड मोर इन लेस टाइम यूजिंग दिस ट्रिक, क्योंकि आपको एक साथ इधर इधर इधर, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम इधर टू इधर, यू कैन एक्चुअली जस्ट गो फ्रॉम इतनी दूर टू इतनी दूर, क्योंकि उसके बाद इधर के 2-3 वर्ड्स, इधर के 2-3 वर्ड्स आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख रहे होंगे। यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इट्स सेइंग, ठीक है। सो ट्राई दिस, इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू वेरी गुड, इफ इट डजंट तो फिर स्टिक टू योर जो हमारा नेचुरल तरीका है पढ़ने का, सो स्टिक टू दैट। So these are some tips, and I have some more tips for you. But before that, guys, let me just walk you through Unacademy Plus और उसके features. Guys, if you haven't subscribed to Unacademy Plus yet, I highly recommend कि please कर लो, because वहाँ पे आपको options मिलते हैं. You can raise your hand and talk to your educators in live classes. You get access to unlimited quizzes. You can also launch your own quiz. You get access to live and recorded sessions anytime, anywhere. You get the opportunity to learn from the best of educators and NLU alumni. You get access to weekly events जैसे know your exam, topper strategies, annual experiences by faculty, etc. You get access to national mock tests and sectional tests. अगर आप CLAT 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, तो हम आपके लिए एब्सोल्यूट लॉ 1.0 नाम का बैच लेके आ रहे हैं। ये 1 साल का बैच है, 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये। इसमें आपको मिलेंगे रेज अ हैंड का फीचर, इसमें आपको मिलेंगे लाइव वॉइस सॉल्यूशंस बाय योर टॉप एजुकेटर्स, 50+ एडिशनल मॉक टेस्ट एंड वीकली सेक्शनल टेस्ट, और मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह। आई हैव लॉस्ट माय पॉइंटर। हाँ, इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस कृति सिंह, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी मिस आयुषी राजपूत, इसमें लीगल रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे मिस्टर केशव मलपानी और मिस आयुषी राजपूत, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर प्रियांशु जैन, और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर वैभव प्रकाश। अगर आप क्लैट महाराष्ट्र सीईटी ब्लैट 2023 के एस्पिरेंट हो, तो हम आपके लिए लीगली रूटेड 3.0 नाम का बैच लेके आ रहे हैं। ये 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 2 साल का बैच है ये। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए। इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस पूजा, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस्टर कुशाल सिंह, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस कृति भटनागर और मिस्टर दिव्य कुमार, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर श्याम सराफ, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर केशव मलपानी। गाइस, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्लस कोर्स मेरा स्टार्ट होने जा रहा है 16 सितंबर से। सो दिस इज स्टार्टिंग ऑन द 16 सितंबर and okay, I'm sorry. Okay, I don't know what just happened. Just give me a moment. I'm really sorry about this. Just give me a moment, guys. Yeah, so what I was saying is कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप मेरा एक कोर्स शुरू होने जा रहा है 16 सितंबर से। इट्स अ कंप्लीट कोर्स ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यू कैन जॉइन दैट कोर्स ऑल्सो इफ यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन, तो डू दैट एंड यू कैन यूज माई कोड लॉयर अप, मेरा कोड है, टू गेट 10% ऑफ ऑन द प्राइसेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो नॉर्मली जो प्राइसेस हैं, आपको 24 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 28,000 रुपीज, 1 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 19,250 रुपीज, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 3,500 रुपीज। सो यू कैन पिक एंड चूज वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और इन प्राइसेस पे अगेन इफ यू यूज माई कोड लॉयर अप तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप। सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी। सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइज टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। All right, we've also come up with a live quiz feature jahan you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that are scheduled by your educators. हर Saturday सुबह 11 बजे Unacademy Law Aptitude Test होता है ULAT,
इट्स 60 मिनट्स टेस्ट, 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। उसके अलावा वीकली T20 टेस्ट भी होते हैं। क्विक 20 मिनट्स का रिविजन टेस्ट है ये। इसमें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है। एंड अगेन 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। बोथ दीज टेस्ट आर ओपन फॉर एवरीवन। ऑल्सो देर इज एन अनाउंसमेंट गाइज, अभी 17 सितंबर तक अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर आप मेरा कोड है, इफ यू यूज दैट, तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही। उसके अलावा आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल रहा है। ठीक है, सो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल रहा है, यानी आपको टोटल 20% का ऑफ मिल रहा है अगर आप 17 सितंबर से पहले पहले तक प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। सो इफ यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ प्लस का सब्सक्रिप्शन, सो नाउ इज द टाइम, हरी ऑलराइट, बिफोर दिस ऑफर गेट्स ओवर, बिकॉज 20% इज अ लॉट ऑफ मनी टू सेव, राइट? So yeah, so again resuming with our topic of discussion जो है how to improve your reading speed basically. So like I gave you okay, I'm sorry, I gave you 3 tips right now. पहला, सबसे पहले तो जस्ट स्टार्ट विद टाइमिंग योरसेल्फ। दूसरी चीज फिंगर पॉइंटिंग टेक्निक यूज करके देखो। थर्ड थिंग, इफ इट वर्क्स फॉर यू तो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मार्जिन एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेज एंड यूज दैट एज योर मार्जिन एंड विद दैट यू कैन यू नो सेव टाइम। यू कैन जस्ट रीड दो तीन वर्ड्स दोनों तरफ से एक साथ। सो यू कैन जस्ट skim through the pages like this and you will be able to comprehend what's written. But again, like I said, to each their own. If this works for you, very good. If this doesn't work for you, use the method that you've been using। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मुझे कहनी है वो ये है कि जो बी लेस रिग्रेसिव, रिग्रेशन कम करो। ठीक है, रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया, अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते किसी चीज को एक बार पढ़ने पे तो आप क्या करते हो? यू गो बैक एंड देन यू स्टार्ट अगेन, देन यू गो बैक, देन यू स्टार्ट अगेन। उससे क्या होता है? यू टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, so when you are building up a reading habit, what you do is don't regression मत किया करो। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी जस्ट मूव अहेड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते चले जाओ, आगे आगे पढ़ते चले जाओ। बार बार पीछे जा जाके बार बार पीछे जा जाके दोबारा से उस चीज को मत पढ़ो, क्योंकि उससे आपका टाइम बर्बाद होगा। और ऑल्सो एक बार इफ यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग ना, तो वो रिग्रेशन खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, आप खुद ब खुद बेटर कॉम्प्रिहेंड करने लगोगे वॉट एवर यूर रीडिंग। ठीक है, सो अवॉइड दिस, अवॉइड रिग्रेशन। ठीक है, उसके बाद मुझे आपको एक बात बोलनी थी कि रिड्यूस सेल्फ वोकलाइजेशन। सेल्फ वोकलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ वोकलाइजेशन होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो, राइट, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर रीडिंग समथिंग साइलेंटली। ठीक है, आप साइलेंटली पढ़ रहे होते हो। फिर क्या होता है कि फिर साइलेंटली पढ़ रहे हो, फिर देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू स्टार्ट मर्मरिंग। ठीक है, चलो मर्मरिंग भी नहीं, योर लिप्स स्टार्ट मूविंग। ठीक है, योर लिप्स स्टार्ट मूविंग एंड देन प्रोबेबली यू स्टार्ट विस्परिंग और यू स्टार्ट मर्मरिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। विस्परिंग या मर्मरिंग आप शुरू कर देते हो। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू स्लो यू डाउन। दिस इज गोइंग टू स्लो यू डाउन। वाई? बिकॉज देन आपका जो रीडिंग स्पीड है वो इक्वल हो जाएगा आपके टॉकिंग स्पीड के। ठीक है, अगर आप you start moving your lips while reading, or you start whispering, or you start murmuring, what happens? Your reading speed becomes equal to your talking speed, and your talking speed is more often than not lesser than your reading speed. अगर आप if you inculcate a habit of reading, तो more often than not आपका जो reading speed होगा वो comparatively बहुत तेज होगा than your talking speed। ठीक है, so this you have to avoid, you have to reduce self vocalization। ये जो हम पढ़ते पढ़ते silent पढ़ते पढ़ते फिर our lips start moving, then we start whispering, then we start murmuring, तो वो आपके रीडिंग स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, बिकॉज योर रीडिंग स्पीड शुड नॉट बी इक्वल टू योर टॉकिंग स्पीड। ठीक है, सेकेंडली